آج پھر خداوند نے میرے دل میں جو بات رکھی ہے وہ ہے یسایہ نبی نے یسوع کے تعلق سے جو باتیں نبوتیں کی ہیں. آج ہم وہ غور کریں گے کہ یسایہ نے یسوع کے بارے میں کیا کہا. یسایہ ایک زوردار ایسا نبی تھا، ایسا مسح شدہ وہ نبی تھا کہ اس نے بہت سی نبوتیں کی، اس نے یسوع کے تعلق سے بتایا. اور ہم نے داؤد بادشاہ کے تعلق سے بھی دیکھا کہ داؤد نے کس طور سے یسوع مسیح کے لیے نبوتیں کیں اور روح القدس کے وسیلے سے اس نے یہ ساری باتیں بیان کی. آج ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب. یسایہ نے یسوع مسیح کے بارے میں جب پیشن گوئیاں کرنی شروع کی تو یسایہ نے کیا کچھ بتایا یسوع کے تعلق سے. یسایہ 7واں باب، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. بڑی مشہور یہ آیت ہے، بہت زبردست. 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا اے داؤد کے خاندان اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام امانویل رکھے گی. آمین. یسایہ نے جو بات یہاں پر کہی ہے، یہ یہاں سے اب میں شروع کروں گا کہ یسوع مسیح کے تعلق سے وہ کیا کچھ یسایہ نبی نے فرمایا ہے. تو یسایہ نے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. اور نشان کیا ہوگا؟ یسایہ نے بتایا کہ خدا یعنی کہ یسوع مسیح کے تعلق سے جو بات کر رہا ہے یسایہ، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ ایک عالمگیر نشان ہے. وہ ایسا ایک نشان ہے، وہ ایسا ایک اچنبے کی بات ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ اس کے بعد ایسا ہوگا، نہ ایسا ہو سکتا ہے. کائنات میں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی پیدائش ایک نشان ہے. نشانات، خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک یہ قوم نشان اور ایسے نشانات نہ دیکھے اور عجائب نہ دیکھے یہ ہرگز یقین نہ کرے گی. یہ قوم ایسی قوم ہے، خدا نے ایک اسپیشل طریقے سے دنیا کے لوگ، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے نبی اسی طریقے سے پیدا ہوئے جس طرح سے دنیا پیدا ہوتی ہے اور جو خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے. لیکن ہمارے پاس خوشخبری اور حیرانگی کی بات یہ ہے، اچنبے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یسوع کی پیدائش جو ہے یسایہ نے بتایا تقریباً اسکالرز بتاتے ہیں تقریباً 750 سال پہلے، اندازہ ہے 750 سال پہلے اس نے کہا کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. آپ یاد رکھیں، آپ جب سے پیدا ہوا آپ کی زندگی میں سینکڑوں نشانات خدا نے دیے ہوں گے، ہزاروں معجزات خدا نے کیے، لیکن کئی بار ہم اس کا دھیان بہت بار ہم دھیان ہی نہیں کرتے. ایک بار ہم نے ایک جگہ پر دعا کی، ایک فیملی میں ہم گئے تو وہاں پر اس خاتون کے سٹونز تھے کڈنیز میں، اور جب ہم دعا کرنے گئے تو اس سے پہلے ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے بتایا تھا. لیکن جب ہم دعا کر کے ساری ٹیم نے پرستش کی، ہم سب نے دعا کی، ہم سب گڑ گڑائے، وہ غریب لوگ تھے، اور اس خاتون کے جو سٹونز تھے وہ غائب ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ کوئی اتنے خطرناک پتھر نہیں تھے. یعنی خدا کے نام کو جلال نہ دیا جائے، یہ ہر طرح سے ہماری کوشش ہے، ابلیس کی بھی کوشش ہے. یاد رکھیں وہ کیسے بھی پتھر تھے، لیکن یہ آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سوائے خدا کے اور کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا. آمین. تو خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے. اب یہاں پر لکھا کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. یسوع مسیح نے کہا ہے یہ بات. کیا نشان ہوگا؟ وہ کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. اتنا بڑا نشان ہے یہ. آپ کو پتا ہے، آپ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے غلط نہ سمجھنا، اگر کوئی بھی لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اس کی وجہ سے ہم اکثر خبریں پڑھتے ہیں، لوگ مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں حاملہ ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ناجائز تعلقات کسی نہ کسی انسان کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ ضرور ہیں. لیکن نشان یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، خدا کا بڑا نشان یہ ہے کہ کنواری مریم حاملہ ہوئی اور بغیر کسی انسان سے ملے. خداوند روح القدس کی قدرت سے، ہاللیلویا، فرشتے نے کہا اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کیا ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا؟ اگر وہاں پر کوئی ایسی کنواری حاملہ ہو جاتی تھی تو وہ اس کو پوچھتے تھے اور وہ اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو سنسار کر دیتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے کام عجیب ہے. جب مریم کو یہ میسج ملا ہو تو مریم بھی کانپ گئی ہوگی. اس نے پہلے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا بھائی میں تو کسی آدمی کو جانتی بھی نہیں ہوں، میری کسی سے کوئی فرینڈ شپ نہیں ہے. اس نے کہا یہ کسی آدمی کی وجہ سے نہیں ہوگا،
बल्कि खुदा की कुदरत के वसीले से होगा। हालेलुया। ये मेरे रूह से हो जाएगा, ये न जोर से और न ताकत से। यशायाह ने पेशन गोई की कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा निशान है कि इस निशान को कोई भी इस तरीके से इसका कोई नेमुल बदल कर ही नहीं सका है, क्योंकि जब भी कोई इंसान पैदा होगा उसका सीड होता है और उसकी वजह से वो इंसान पैदा होता है। आपने देखा कि अमेरिका में डॉक्टर्स इतने तरक्की कर गए कि वो टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चा पैदा कर लेते हैं। वो गो के मियां बीवी की शादी तो नहीं होती, लेकिन तो भी वो मेडिकली इस तरीके से इंजेक्ट करते हैं उस सीड को, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन बगैर उसके नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स ऐसे पैदा हुआ है, एक जिसको आप और मैं मानते हैं, और उसका नाम सब नामों से आला है, और उसका नाम है यीशु, जिसका मतलब है यहोवा निजात है। हालेलुया। वो निशान बख्शेगा। और फिर नबूवत की इस बात की सच्चाई इस तरह से साबित होती है, उसने कहा कि बेटा पैदा होगा, और हुआ भी बेटा, बेटी नहीं हुई। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये कोई तुक्का नहीं लगाया जा रहा था, ये डायरेक्ट रूहुल कुदस की तरफ से मैसेज आ रहा था। जब रूहुल कुदस मैसेज देता है तो उसमें रत्ती बराबर भी कहीं फर्क नहीं होता। आमीन। मैं अक्सर बताता हूं ना कि वो बिल्लू जब पैदा हुआ था, उबैद मिस्टर सैम साहब हमारे चाचा जी, उनका बेटा, तो खुदा ने मुझे टाइम था 2:25। तो मैंने इनसे कहा 2:25 पे पैदा होगा। तो वो कहने लगे नहीं जी 2:30 बजे पैदा हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं कहा यार खुदा का तो सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। मैंने अपनी डायरी निकाली, उसमें 2:25 ही लिखा था। मैं डायरी उठाकर उनके घर चला गया, मैंने उनकी घड़ी देखी, उनकी घड़ी 5 मिनट आगे थी। खुदा की घड़ी में 2:25 में पैदा हुआ था बिल्लू। हालेलुया। खुदा की तरफ से जो कहा गया था कि एक बेटा पैदा होगा, और वो बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। और उसका नाम यशायाह ने कितने अच्छा, ये देखें हैरानगी की बात, दूसरे अचानक से पैदा हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल सभी पैदा होते हैं। अचानक का मतलब नॉर्मल जैसे सब पैदा होते हैं, लेकिन इसका हजारों साल पहले से खुदा बताता आ रहा है कि एक कुमारी हामला होगी। हालेलुया। इसके बारे में मूसा ने कहा है, इसके बारे में दाऊद ने कहा है, इसके बारे में यशायाह ने कहा है, इसके बारे में योएल ने कहा है, इसके बारे में ज़िक्रिया ने कहा है, इसके बारे में सब ने कहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा होता, वो खुद से ही कह रहे होते हैं। उसने कहा, और तो उसका नाम क्या रखना? इमानुएल। इमानुएल का क्या मतलब है? वो ये कोई आम बच्चा नहीं है जो कुंवारी से पैदा हो रहा है। जो कुंवारी से पैदा हो रहा है वो खुदा ही है, जो इंसान बनकर खुद खालिक बन इंसान आ गया। हालेलुया। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। किस किस के साथ खुदा है? हमें डरते फिरते जैसे ऐसे कांपते, कोई बात हो जाती है खुदा तुम्हारे साथ। एसपी आपके साथ जा रहा हो तो आप बड़ी दिलेरी से जाएंगे, है ना। तो थाने का केस होता है ना, कोई पुलिस वाला ढूंढते हैं, कहते कोई बंदा ऐसा लेकर जाओ जो थाने से वाकिफ होवे, है ना। वो फिर कोई आ जाता है, वो जाता है बड़ी दिलेरी से बात करता है। तो हमारा यीशु हमारे साथ होता है, लेकिन हम फिर भी ऐसे जा रहे होते हैं जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही होना है, जैसे दुनिया के सबसे हारे हुए लोग हम ही हैं, दुनिया के सबसे थके हुए लोग हम ही हैं, ऐसे ही ना। और किस किस के साथ खुदा नहीं है? वाह, कितनी परफेक्ट कलीसिया है। और उसका नाम इमानुएल का मतलब, इमानुएल रखेगी वो। इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। जीसस क्राइस्ट इज अ गॉड, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा यकीन नहीं करते, मेरे कामों से मेरा यकीन कर लो कि मैं अपने बाप कैसे काम करता हूं कि नहीं करता हूं। जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, बेटा भी जिसे चाहता है उसे उठाता और जिंदा करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने कहा जो बेटे पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी उसकी है। यशायाह ने पेशन गोई की, और बेटा क्या करेगा? यशायाह के 9वें बाब में लिखा, 6ठी आयत में, 6ठी 7वें आयत अगर हम पढ़े, वहां लिखा हमको एक बेटा बख्शा गया। उस बेटे का काम क्या? बेटे के आगे से जॉब टाइटल क्या है? उसने कौन कौन सी जिम्मेदारी निभानी है? खास तौर पर लिखा, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, हुकूमत संभालेगा। उसका बाप बादशाह, तो बेटा कौन सा वजीर होगा? बेटा भी बादशाह ही होगा। शहजादा चार्ल्स का बेटे को भी प्रिंस ही कहते हैं, शहजादा। क्या नाम? विलियम, प्रिंस विलियम। अब जिसकी शादी हुई है प्रिंस है वो, शहजादा। और हम भी तो उसके शहजादे हैं कि नहीं है? और हम शाही कायनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम हैं, रॉयल, हम शाही लोग हैं। जब कभी मुझे कहीं पे इस टाइटल को इस्तेमाल करना पड़े तो फिर मैं क्लेम करता हूँ ईमान के साथ। इनको तो समझ नहीं आएगी। जब मैं उनको जा कहूँगा जी मैं शाही कायनों से आया हूँ, कहेंगे कौन काहिन कौन होता है? लेकिन मैं क्लेम करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावन देख, हम तेरे मुकद्दस लोग हैं जो तेरे बेटे यीशु के खून से धुले। आमीन।
हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम ईमान से इसराइली हैं। आपको पता है जब इसराइल का जिक्र आता है दिल धड़कता है ना, यरूशलेम का नाम आता है तो दिल धक धक करता है, क्योंकि वो हमारा वतन है। ईमान से हम वहाँ पैदा तो नहीं हुए, लेकिन तो भी ईमान के वसीले से हम इसराइली हैं। इसलिए आप इसराइल के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा आपको बरकत बख्शे। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, अजीब मशवरे देने वाला, खुदाए कादर। यीशु जो है खुदाए कादर। मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है कि मेरे लिए खुदाए कादर ने बड़े बड़े काम किए, मेरे मुनज्जी खुदा से मेरी खुश है, मेरी रूह खुदा से खुश है। हालेलुया। और अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। दुनिया के जो प्रिंस हैं अगर उनको लड़ना पड़े तो जंगे करते हैं। वो शहजादे जो हैं, बरतानिया की हिस्ट्री है, इसने पूरी दुनिया को बीट किया था, पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी डंडे के जोर से। फ्रॉड करते थे, चक्करबाजी करते थे, आते थे हमारे बड़े सगीर में आए थे ना, कहा जी हम थोड़े कलीम बेचा करेंगे आके, उधर से लाके कुछ तिजारत किया करेंगे। मुगल बादशाह बेचारे इतने दिमाग नहीं था उनका, बादाम खा खा के सोते रहते थे, बस जहां जाना हाथी उठा के लेते थे। वो तेज बहुत थे, एक्टिव। उन्होंने कहा जी हमने ये करना, और वो आए और आते गए और आते गए, जहाज भर भर के आते गए और उन्होंने सारों को फतह कर लिया। लेकिन हमारा जो प्रिंस है वो प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। और हम उसकी रियाया, हम उसके लोग हैं। हमारे अंदर भी पीस है कि नहीं? और बेचैनी भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ, लड़ाई भरी, झगड़ा। प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा। कौन कौन है सलामती का शहजादे यहाँ पर? इसमें है गड़बड़। खुदा सबके साथ है। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? रोहेल को देखा, गवाही सुनी उसकी मामा की, उसको डायरेक्ट स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली रेलवे में। मैं समझता हूँ कि ये तो आज के दौर में तो हमारे साथ तो नामुमकिन है, लेकिन जब खुदा साथ हो तो खुदा रास्ते बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह ने पेशन गोई की, उसने कहा और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त पर और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। और यशायाह ने क्या कहा यीशु के ताल्लुक से सुनिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं संजीदगी का मुकाम आ रहा है। यशायाह 50वें बाब की 6ठी आयत में उसने कहा, ये यशायाह बोल रहा है गोया के यीशु मसीह की तरफ से। यीशु मसीह के अल्फाज सुनिए, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के लिए के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। यशायाह ने कह दिया, उसके मुंह पर थूका गया कि नहीं थूका गया? उसकी दाढ़ी नोची गई कि नहीं? उसके तमाचे मारे गए, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए। यशायाह ने कहा ये आपके मेरे गुनाहों की वजह से उसने बताया। वो बोल रहा है यीशु के अल्फाज में कि मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। वो रुसवा हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी उसके मुंह पर छा गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके बालों को नोचा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए और उसको सर से पांव तक घायल किया गया। ये यशायाह ने बताया। क्या किसी कौम के किसी लीडर के बारे में ऐसी पेशन गोई है कि वो अपनी उम्मत को बचाने के लिए ना किसी की जान ले बल्कि उम्मत को बचाने के लिए अपनी जान दे दे? वो आपके और मेरे यीशु ने किया। ये यशायाह ने बताया 750 साल पहले। हालेलुया। आपको पता है उसने वो जो पीठ पे हमारे कोड़े पड़ने थे, जो हमारा हाल होना था, जो हमारे लिए सजा थी, जो हमारे लिए अजाब था जहन्नम की आग का, उससे बचाने के लिए उसने उसके पांव खालिस पीतल की मानी। उन्होंने क्या बताया मुकाशफा में? पीतल अदालत को जाहिर करता है और उस पर अदालत हुई। मेरे अजीजों, हमारी सजा उसके ऊपर ला दी गई। प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपकी तवज्जो संजीदगी के साथ इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप तौबा करें। हम सब तौबा करें, हम सब खुदावंद को अपना दें, हम सब उसकी इस कुर्बानी को रद्द ना करें। आप अपने बाप के घर वापस आ सकते हैं, क्योंकि जो गुनाह है वो घर से आउट कर देता है। आपको पता है गुनाह घर में रहने नहीं देता बाप के। मूसा बेटे ने यही किया था ना, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। यशायाह ने बताया कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। यशायाह ने बताया कि वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यशायाह ने बताया कि हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसकी सल्तनत के इकबाल की इंतहा न होगी और उसके बाप का जो तख्त उसको दिया गया वो अब तक एवरलास्टिंग, हमेशा हमेशा के लिए उसको दे दिया गया।
उसकी बादशाही का कोई इंतहा ना होगा। और उसने बताया कि यीशु मसीह की पीठ पे कोड़े मारे गए। यशायाह 53 बाब देखें, यशायाह 53 बाब लिखा पहली आयत से, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। उसकी खूबसूरती जाती रही। आपको पता, बहुत अरसा हुआ हम लोग रोज़ा रख कर दुआ करते थे, सारी टीम के लोग, तो हम अक्सर देखते थे, हम तस्वीरों में देखते हैं खूबसूरत सा हाथ होता है, बड़ा प्यारा सा एक जख्म होता है छोटा सा। ऐसा नहीं है, वो तो हाथ देखा नहीं जाता। वो जो हम देखते थे रोया में, वो जब हम दुआ करते थे वो हाथ हम पर जाहिर होता था, वो इतना मोटा सूजा हुआ होता था, खून निकल कर जमा हुआ होता था, और ये आर पार यहाँ से सुराख चीरा होता था। वो जब हम पर जाहिर होता था और हम देखते थे कलाम खुदा करता था, बदरूहों को हम बांध देते थे, बैठे बैठे इलाके की बदरूहों को हम कमांड करते थे, हमारा हुक्म मानते थे। हमने देखा कि वो मुंह सूजा होता था। हम देखते थे जिस शख्स को जहरीले कांटों का ताज पहना दिया जाए, उसका जो पॉइजन है उन कांटों का, वो आज भी वहां पर, वो तो उसको स्वेल कर देता है। मेरे अजीजों, उसकी खूबसूरती जाती रही। लिखा जब हम उस पर निगाह करें तो उससे कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना था, लोग उससे गोया रुपोचते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जाने। हमने उसके, मैंने एक गुड फ्राइडे को शायद ये कलाम सुनाया था कि हमने उसकी कोई कदर न जाने, हमने उसकी मोहब्बत का क्या मोल ठहराया है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उसने कर दिया है इससे ऊपर तो कोई भी नहीं कर सकता था, और उसने पूरा काम तमाम किया है। अब हमारा काम है आगे। शाहिद भाई ने भी लीड करते हुए कहा कि आज भी बहुत से लोग जो हैं, उसने हमारे लिए तो काम कर दिया, लेकिन आज बहुत से लोग इस बरकत से फैज़याब नहीं हुए। बहुत से लोग यीशु की हुजूरी में नहीं है, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली। ये ईसाया ने बताया। ईसाया उसकी शक्ल का बयान करता है कि उसकी शक्ल पहचानी नहीं जाती, खूबसूरती, हुस्न जमाल उससे जाते रहे। हमारे गुनाहों की वजह से उसकी तहकीर की गई, उसकी इंसल्ट की गई, इसके बावजूद उसने हमारी मुशक्क़तें उठाई, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारे गमों को, हमारी तकलीफ को, हमारी सजा को, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा हुआ समझा, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया। आमीन। किसकी खताओं के सबब से? मेरी। मैं अपना कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आपके, आप खुद जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाह उस पर लादे गए थे, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, ईसाया ने बताया, और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, कुचला गया। ये जो गतसमनी का लफ्ज है, गतसमनी का मतलब ही है कुचला जाना, कोलू में पेड़ना, इस चीज को निचोड़ना, इस चीज को। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, कुचला गया वो आपके लिए। कुचला, कुचला समझते हैं, कुचल जाना किसी। मैंने कल एक डॉग की तस्वीर देखी जो बिच थी, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, किसी पाकिस्तानी ने अंधे वाली गाड़ी पे चढ़ा दी, उसके 6 बच्चे थे। फेसबुक पे मैंने शेयर किया, किसी ने भेजी थी, मैंने आगे शेयर किए। आप देखिए उसमें उसका जिस्म, उसका खून निकल रहा है, और बच्चे उस मरी हुई माँ का दूध पी रहे हैं, समझ रहे हैं कि माँ सो रही है हमारी। कुचल जाने का मतलब था उसकी शक्ल सूरत खत्म हुई थी, प्रेस हुई था। मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? ईसाया मज़ीद बताता है इसके बारे में। पहले वो नक्शा बयान करता है, उसके दुखों को बयान करता है, उसके चेहरे की शक्ल शबाहत को बयान करता है, उसके मुंह पर थूके जाने को बयान करता है, उसकी कमर पर मारे जाने को बयान करता है, और उसकी दाढ़ी के नोचे जाने का बयान करता है, हमारे गुनाहों का बयान करता है कि हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हुआ, और क्यों हुआ, क्यों हुआ, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उफ, शिफा के लिए इतना बड़ा काम हुआ है। अगर आप ईमान रख लेना इस बात पे, तो आप बीमार नहीं रह सकते। हाँ जी, कोरिया का जो खादम है, क्या नाम है जिसका, जे रॉकली, वो जब यहाँ आया था वो 62 साल का था, और उसने कहा मुझे यीशु को कबूल किए तकरीबन 30-35 साल हो गए। 20 साल की उम्र में शायद उसने बताया मैंने कबूल किया था। कहता उसके बाद मुझे आज तक जुकाम भी नहीं हुआ। कह रहा ये नहीं कि मैं बड़ा अच्छा, मैंने ये समझ लिया है कि हो नहीं सकता, क्योंकि लिखा है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। इतना भारी उस पर जुल्म किया गया, इतनी भारी उस पर सियासत हुई, इतनी उस पर मार पड़ी, इतनी अदालत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम, पहला पत्रस 2 बाब 24 में तुम्हें लिखा ना, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। बीमार लोगों के लिए खुशखबरी है, आपका 2000 साल पहले इंतजाम हो गया, और 750 साल पहले उसने बताया, तकरीबन 2700 साल पहले, तकरीबन 3000 कह लें आप, ये बात बताई गई कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। आप अगर इस बात को समझ लेंगे, आप क्लेम करेंगे, आप क्लेम करेंगे, आप ईमान से क्लेम करेंगे, और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। 12 बरस की बीमार और कहती थी मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी।
आप अपने आप से कहना शुरू करें, यस्सु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है, ऐ खुदाउन मैंने इस बीमारी से शिफा पा ली है, ऐ खुदाउन मैं बीमार नहीं रह सकता, मैं नहीं बीमार रह सकती, क्योंकि यशायाह ने बताया है हमें और लिखा वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। देखिए उसकी बर्दाश्त देखें और हमारी बर्दाश्त देखें। हम तो छोटी छोटी बात पे इतनी तपिश में आ जाते हैं, इतने तप जाते हैं, कहाँ चढ़ते हैं और कहाँ उतरते हैं, और उसको कोड़े मार रहे, उसके मुंह पे थूक रहे। पतरस ने एकदम तलवार चला कर उसका कान उड़ा दिया, यीशु फिर भी इतना अच्छा उसने कान भी वापस जोड़ दिया, और उसने उसको वापस उठाया तो जोड़ा, और फिर उसने कहा तलवार को म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं सब तलवार से कत्ल किए जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने बर्दाश्त की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारा यीशु बर्दाश्त करता तो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और कहते जी होते यीशु है ऐसी, यार यीशु है ऐसी, यीशु इंसान बने ऐसी। ये देख लें कि यीशु पहले सारी लाइफ जो है उसने उस तरह से जलाली नहीं गुजारी, जलाल से भरा हुआ कि जी अब मैं कोई इंसान बना ताकि इब्लीस को आजमाए। अगर वो पूरी कुदरत में जब आता था एक दबका लगाता इंसान भाग जाता था, बुजुर्गों को जब निकालता था, जब कमांड करता था तो पूरा अख्तियार लेता था फिर। और लेकिन जब वो आम इंसान के तौर पर चलता था उसने अपने को लिखा खाली कर दिया था, आमीन। लेकिन जब तूफान उसके सामने आता था फिर वो खुदा का अख्तियार इस्तेमाल करता था। खुदा भी था ना, कामिल खुदा और कामिल इंसान। यीशु मसीह के ये जो पर्सनैलिटी है इस तरह से, जब भूखों को देखता है फिर उसका दिल तरस से भर जाता है, फिर वो कहता है नहीं भाई इनको रोटी खिलाना चाहिए, फिर वो हुक्म देता है। ये खुदा करता है ऐसे। तूफान को कौन थमाता है? खुदा। कहता तेरे गुनाह माफ हुए, ये खुदा करता है, आमीन। और उसने इंसान की तरह जब आजमाया गया उसने बर्दाश्त की, उसने क्या लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। प्रेज द लॉर्ड। उसने बर्दाश्त की। मैं आपको बर्दाश्त का सबक देता हूँ आज के सबक में से, हम सब इस सबक को सीखें कि यीशु ने बर्दाश्त की। लिखा तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, वो इसी तरह खामोश रहा। वो जुल्म कर फतवा लगाकर उसे ले गए और उसके ज़माने के लोगों में से किसी ने ख्याल ना किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। मेरे लोगों की खताओं के सबब से, हम सब की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसने वॉलंटियरली इसको कबूल किया। आपका और मेरा इज्जी हुआ ताकि हम निजात पाए, रिहाई पाए, आमीन। और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। वो पाक जात, वो शरीर तो नहीं था लेकिन कब्र शरीरों के बीच में बनाई गई। लेकिन खुदावंत को ये पसंद आया कि उसे कुचले। ये पसंद है, खुदा के लिए पसंदीदा है। खुदा के सामने पसंदीदा बात है ये कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा, और अपने ही इरफान से मेरा खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। अपने इरफान से मेरा खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। आपको और मुझे अपनी कुर्बानी देकर हमको रास्तबाज ठहराएगा, आमीन। पहला पत्रस 2 बाब 24 में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। बीमार लोग सुन रहे हैं इस आवाज को, क्या आप शिफा पा जाएंगे आज? इसी आपके पास इतना ईमान है? आप अपने ईमान के लिए दुआ करें, खुदावंद आज इस पैगाम को सुनकर मैं शिफा, क्योंकि ये हमारी शिफा का जिक्र है, इसमें लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। ओ कहां दूंगा हिस्सा? तख्त पर बैठ जाएगा। और फिर देखें क्या लिखा है, और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की है। खुदावन की खूबसूरत पर्सनैलिटी को देखें, उसकी रहम करने वाली जात को देखें, माफ करने वाली कुदरत को देखें कि उसने हमारे लिए शिफायत की। उसने कहा बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको छोड़ दे। उसने अपने बाप के सामने जाकर अपने खून का प्याला दे दिया। उसने कहा बाप अब इनको आजाद कर। और दाऊद ने बताया, पिछली बात जो मैं बता रहा था कलाम में, दाऊद ने कहा जब तूने आलम बाला को सऊद किया तो तू कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। हालेलुया। उसने कैद के बंद तोड़े, जो कैद थे गुनाहों की वजह से, उसने उन सबको लिया। उसने कहा आओ अब इमिग्रेंट वीजा मिल गया हमें आसमान का, आ जाओ। सबके लिए उसने वीजा स्टैंप करवाया। एक ही दफा इमिग्रेशन ले दी, आसमान की इमिग्रेशन। वहां किसी की रसाई नहीं है, एक रास्ता है यीशु मसीह, उसके वसीले। जब अमेरिका में बड़े खादमों से पूछा जाता है वो गोल मोल जवाब देते हैं,
बहुत से बड़े खादम, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, उनसे लैरी किंग ने पूछा, उनसे और वो एक लेडी है ब्लैक, ओपरा करके कोई प्रोग्राम उसका चलता है, वो पूछती है, और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई क्या यीशु ही सिर्फ एक रास्ता है आसमान पर जाने का? तो वो कहते हैं वी डोंट नो। व्हाई वी डोंट नो? वी नो, वी डेफिनेटली श्योरली नो जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे टू गॉड, हालेलुया, एंड ही इज द ओनली सन। तो खुदा का एक ही बेटा है और एक ही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बाद बाप के पास नहीं आ सकता, ये बाइबल ने हमें बताया है और यीशु मसीह ने अपनी जुबान से फरमाया। आमीन। और देखें ईसाया ने क्या फरमाया। अगर हम देखें ईसाया 61 बाब, हालेलुया, आपको पता है कितनी खूबसूरत बात है। ये सारा मैसेज जो है हम अक्सर याद करते हैं, दोहराते हैं। 61 बाब की पहले में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। ये पता कहाँ, ये वाला आपको पता ना, पढ़ा गया था बाइबल में, है लूका की इंजील के 4 बाब में। यीशु मसीह अकल में गया, ऐसे है यशायाह नबी का सीफा से खोला और ये वाला बाब निकाल लिया। उसको पता था मेरे लिए लिखा हुआ, ये मेरे लिए नबूवत है, हालेलुया। जब उसने पढ़ा लोग उसका मुंह देखने लगे और उसने कहा कि आज कलाम तुम्हारे सामने पूरा हो गया, तुम ईमान लाओ या ना लाओ, कलाम पूरा हो गया। कलाम जो खुदा ने लिखा, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और गमगीनों को दिलासा दूं। हालेलुया। उसने मुझे मसा किया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। जुबली के साल की मुनादी, जो 49वां साल होता था वो कैदियों की रिहाई का, उसने एक बड़ी जुबली का ऐलान किया। उसने नरसिंगा फूका, उसने कहा सारे कैदी आजाद हो जाओ, हालेलुया। उसने कहा आज खुदावंद का ये कलाम आपके सामने पूरा हुआ है। और लोग उसको बड़े हैरान कुन तरीके से देख रहे थे कि इसने कौन सा हवाला पढ़ा, इसने कौन सा हवाला पढ़ा है। मेरे जीजो, और एक हवाला यशायाह का पढ़ेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे हम। यशायाह 44वां बाब 21-22 आयत। ऐ यकूब, ऐ इस्राइल, इन बातों को याद रख क्योंकि तू मेरा बंदा है। ऐ जस्टिन, ऐ शाहिद और राशिद, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बेटो, मियाँ मीर कॉलोनी के बासियों, वर्ल्ड सल्वेशन चर्च की कलीसिया, ये बात सुने। ऐ याकूब, ऐ इस्राइल, इन बातों को याद रख क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे बनाया है, तू मेरा खादम है। ऐ इस्राइल, मैं तुझको फरामोश ना करूंगा। वो कहता है मैं तुझको फरामोश ना करूंगा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिन और तेरे गुनाहों को बादल की मानिन मिटा डाला है। आमीन। मेरी तरफ वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बॉटम लाइन ये है, यशायाह का सारा मैसेज, सारा सरमन की क्लोजिंग ये है। उस नबूवत के सारे पैगामात को जब हमने यकजा करके सुनाया तो हासिल कलाम ये है कि अब हमें क्या करना है। उसने मार खाई, वो कुचला गया, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, उसके हाथों पांव में कील ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी इंसल्ट की गई और उसका बरमला तमाशा बनाया गया। अब वो क्या चाहता है सुन, मेरी तरफ वापस आ जा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिन और तेरे गुनाहों को बादल की मानिन मिटा डाला है। मेरी तरफ वापस आ जा, मेरी तरफ वापस आ जा, मेरी तरफ वापस आ जा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुशखबरी यह है, कीमत अदा हो गई है, हमारे गुनाह जाते रहे। ऐ इस्राएल सुन, खुशी मना क्योंकि तेरा कफारा हो गया है, हालेलुया। तू अपने गुनाह से छूट गई है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यशायाह नबी ने कहा कि वो हमारे लिए कुचला गया। आज अगर आप उसकी आवाज सुन के अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं आज, हालेलुया। अगर कोई अपना हाथ दिखाना चाहता है, वो समझता है कि मैं खुदा के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, वो तौबा कर सकता है। आज आपके सामने खुदा के नजात के प्लान को पेश किया गया कि किस तरह से यीशु मसीह कुचला गया। यशायाह नबी के सहीफे में से हमने आज सारी स्टडीज की, उन हवाला जात की जहां पर उसकी मुसीबत, दुख और उसकी इंसल्ट और उसके दुख कर्ब को बयान किया गया। कुचला गया आपके लिए, मेरे लिए। आज आपकी लाइफ का एक नया रोड शुरू हो सकता है, एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। अगर आप गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, आप अपने हाथ को दिखा सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। जिन्होंने हाथ दिखाया शाबाश, गॉड ब्लेस यू। बहनें भी खुदावंद आपको बरकत दे। जिन बहनों ने हाथ दिखाया वो खड़े हो और भाई भी खड़े हो। जिन्होंने हाथ दिखाया तौबा करने के लिए, सारी जमात ना खड़ी हो, जो तौबा करना चाहते हैं वो खड़े हो।
प्रेज जीसस, खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरी सताइश, हालेलुया, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर। आप मेरे साथ एक दुआ कर सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं। आप कहें मेरे पीछे, ऐ खुदावन, मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, मुझे अपनी बादशाही में कबूल कर। खुदा तेरे कलाम में हमने सुना है कि तूने हमारे लिए दुख सहा, तूने मेरे लिए दुख सहा, मेरे खताओं को तूने मिटा दिया। ऐ खुदा मुझे माफ़ कर, मुझे फजल दे कि मैं वफादारी से तेरे साथ साथ चलता रहूं, चलती रहूं, और जब तक मैं ज़मीन पर जिंदा हूं मैं तेरे साथ वफादार रहूं। मेरे गुनाह माफ़ कर, आमीन। ऐ खुदा मैं इस सारी जमात के लिए तेरा शुक्र करता हूं जिन्होंने आज इस पैगाम को सुना, और इस पैगाम को सुनने के बाद जिन लोगों ने आज रिस्पॉन्स किया, इकरार किया, पब्लिकली अपने गुनाहों से तौबा की, आज से ऑनवर्ड ये तुझ में एक नई ताजगी का एक्सपीरियंस करें, एक नई बरकत इन पर ठहर जाए, एक नई कुदरत इन पर ठहर जाए, और ये फील करें, ये बताएं कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े काम किए। ऐ खुदावंद अपने लोगों को छू कर बरकत दे और अपने में कायम रहने का फजल दे। तेरा आसमान हमेशा तेरे बच्चों पर खुला रहे, हर किस्म की इब्लीस की तासीरों से बचाना और इनकी बड़ी हिफाजत करना, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से, आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे।